Good morning, students. Once again, welcome back to our online classes of Science Standard 3rd. Students, we have completed our first lesson, that is living thing and non-living things. Okay? Now, students, in that lesson, we have studied definition of living things, and we have seen various qualities of living things. Then we have seen difference between living things and non-living things, and in the last we have studied difference between plants and animals, and we have completed our worksheet number 1. In today's period we are going to continue with our worksheet number 2. So students, I can also take a photograph of that page and send it to you at your home. But I just want to solve this worksheet along with you, along with your responses. So I have decided to solve it with you. So what are we waiting for? Let's get started. तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है, ये लेसन अभी हाल ही में हमने कंप्लीट किया है और वर्कशीट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट पीरियड में सॉल्व किए हैं. स्टूडेंट्स, मैं चाहूँ तो इस लेसन के वर्कशीट के फ़ोटो निकाल कर तुमको भेज सकती थी, लेकिन मुझे तुम लोगों के साथ में ये वर्कशीट सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है. आई एम हैविंग अ ग्रेट फन solving this worksheet along with you. Okay, so let's start. First sentence is unscramble the letters. unscramble the letters मतलब जो words जो है, अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पर उल्टे पुल्टे हो गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं, तो तुमको इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाकर उससे एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना है. यू हैव टू मेक मीनिंगफुल word from these unscrambled letters. Okay, so first is, look at the board students, OEEMMVTN. So what will be this word? Yes, you are correct. Answer is MOVEMENT. Movement. Living things show movement. Correct. Now students, see this second word, GREBHTANI. So what will be this word? Any guesses? Yes, very good. It is breathing. I know students, you are very clever. BREATHING. Now see the last one, OODF. चलो फटाफट करो तो इसका एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार. It is very easy. We will write F first. Listen here. FOOD. What is this word? Food. Yes. Living things eat food. Can you remember something that I have taught you in the last period? Characteristics or qualities of living things. Okay. Now students, question number 2, that is true or false. Now see, first is animals are fixed to the ground. Students, is this sentence correct? Animals जो हैं, ध्यान दे के देखिए, animals are fixed to the ground. Animals जो है वो ज़मीन के ऊपर फिक्स होते हैं, एक जगह पर ही वो खड़े रहते हैं. तो ये सेंटेंस करेक्ट है? Obviously not. This sentence is false. So what you will write here? False. So write here false. Now let's see the second. Plants
plants cannot move from one place to another. प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते. तो इज दिस सेंटेंस करेक्ट? यस. सो वी हैव टू राइट हियर ट्रू. समझ में आ रहा है? यस. नाउ सी सेंटेंस नंबर सी. मशरूम इज अ प्लांट विच कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. मशरूम ये जो ऐसा एक प्लांट है वो खुद का खाना खुद तैयार नहीं कर सकता. तो ये सेंटेंस करेक्ट है? ट्रू है या फॉल्स है? दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, बिकॉज मशरूम इज अ नॉन ग्रेन प्लांट. मशरूम ये क्या है? नॉन ग्रेन प्लांट है और इसके लिए दैट्स वाई इट कैन नॉट मेक्स इट ओन फूड. ओके, सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. सो वी विल राइट हियर ट्रू. Now see the last one. Mushroom is a rich source of protein. मशरूम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं. If we are eating mushrooms, students, do you remember? When I am teaching you this point, at that time I have told you that some mushrooms are edible while some mushrooms are non-edible. मतलब कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मशरूम होते हैं कि जिन्हें हम खा नहीं सकते. और क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज दे कंटेन सम पॉइजनस कंपाउंड. क्योंकि उनमें पॉइजन होता है जिससे खाने से हमको हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है. सो मशरूम इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो मशरूम जो है ये क्या है? इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. इसीलिए बहुत से लोग जो है वो मशरूम खाना पसंद करते हैं. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है धीरे धीरे मैं क्या पढ़ा रही हूँ? ओके, लेट्स गो. नाउ स्टूडेंट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स रीड द सेंटेंस. Plants take air through small pores known as dash dash. Plants take air through small pores. Plants जो है वो अपने अंदर जो बारीक बारीक छेद होते हैं उसके द्वारा वो क्या करते हैं? बाहर की हवा अंदर लेने का काम करते हैं. Known as, तो वो छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? We call it as stomata. So we will write here stomata. Okay. Next sentence. Most animals have dash dash for breathing. बहुत से जो एनिमल्स होते हैं तो उनको ब्रीथिंग करने के लिए मतलब सांस लेने के लिए क्या होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के अंदर? They are having lungs. So we will write here lungs. Let's underline this. For breathing. Now see, this is very simple. Fish have dash dash and insects have dash dash to help them to breathe. Fish have dash dash. Fish को जो breathing part रहता है fish का उसको हम क्या बोलते हैं? Fish are having gills. क्या होते हैं उनको? Gills. Let's underline this. And insects have dash dash to help them. So insects are having spiracles. So we will write here, or you can say spiracles, to help them to breathe. So have you understood this? Now see, let's move towards question number 4. Name the following. You can see on textbook page number 14 some pictures are given here. Okay, so now see the first picture and you have to identify this picture and write down its name. ये जो चित्र है, ये जो पिक्चर है, ये देखकर तुमको पहचानना है ये कौन सी बॉडी पार्ट्स का पिक्चर है
और उसका नाम तुमको यहाँ पर लिखना है. सो फर्स्ट वन इज, कैन यू गेस? दिस इज द पिक्चर ऑफ द lungs. These are our lungs. So we will write here lungs. Correct. Now see, this is the picture of a fish, and fishes are having gills. As I have told you just now, fishes are having the gills. So we will write here GILLS. Students, you have to write down this in capital letters. Okay. Now see, this picture is of spiracles. Okay, or we can say spiracles. 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 And last one is the picture of what? Mushroom. Okay, so we will write here mushroom. The spelling of mushroom you have to learn. मशरूम का स्पेलिंग क्या है, स्पाइरेकल्स का स्पेलिंग क्या है, ये सब तुमको लर्न करना है. सो MUSHROOM, मशरूम. Okay students, are you getting this? Now question number 5. Now students, see question number 5. Take the correct answer. What do plants need for making their food? Plants को अपना खाना तैयार करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? इनमें से कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? एयर ज़रूरी है? Yes. So you have to tick it. Gills? No. Sunlight? Yes. Water? Yes. Juice? No, wrong. So like this we have completed worksheet number 2. Now students, below this lesson, after completing this lesson, there are some exercises that we have to solve given below the lesson. Okay, so let's start to solve the question and answers given below the lesson. Now students, see the exercise given below the lesson. जो lesson के नीचे जो exercise दिए हैं, question answer है, that we are going to solve now. So question number A, take the correct answer. First one is, fish respire with the help of A, lungs, B, gills. फिश जो है रिस्पायर करना मतलब सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग इज द अनदर वर्ड फॉर दैट. सो किसके मदद से करते हैं, लंग्स के या गिल्स के? तो फिश जो है, फिश को क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. सो वी विल टिक इट द गिल्स एंड मेक इट रॉन्ग टू द लंग्स. क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्स आर, जो स्टार्स होते हैं नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स. स्टार्स जो है ये नेचुरल थिंग है या मैन मेड थिंग है? नेचुरल थिंग मतलब नेचुरली वो नेचर में प्रेजेंट है, हाँ. और मैन मेड थिंग्स मतलब जिसको इंसान ने बनाया है. तो स्टार्स को इंसान ने बनाया है क्या? नहीं. तो हम इसको करेंगे रॉन्ग और नेचुरल थिंग को करेंगे राइट. नाउ थर्ड वन इज, हाउसेस आर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. जिन घरों में हम रहते हैं वो लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो हम क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स को राइट करेंगे और लिविंग थिंग्स को रॉन्ग करेंगे. देन नेक्स्ट वन इज, स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन. स्टोमाटा जो है वो किस में होता है, प्लांट्स में या एनिमल्स में? किस में होता है, प्लांट्स में. सो वी विल टेक प्लांट्स एंड मेक इट रॉन्ग टू द एनिमल्स. स्नेक रिप्रोड्यूस बाय, स्नेक जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कैसे? बाय लेइंग एग्स और प्रोड्यूसिंग यंग वंस. या तो वो अंडे देते हैं या फिर यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है? लेइंग एग्स. सो वी विल टिक इट हियर एंड मेक इट रॉन्ग टू द अनदर ऑप्शन. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, fill in the blanks. Question number B is, fill in the blanks.
So let's move forward. Now students, see question number B, fill in the blanks. Options are given here: size, food, nose, reproduction, breathing. Okay, these are all the options given here. First sentence is plants prepare their own. प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खुद का क्या तैयार करते हैं? खाना खुद ही से तैयार करते हैं. सो वी विल राइट हियर फूड. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. Then see the second sentence. The process of taking in and giving air out is called. Second answer is breathing. So we will write here breathing. Okay, and underline it. Now third one, dash dash means giving rise to young ones. Dash dash means, so we will write here reproduction. Reproduction means giving rise to young ones. Fourth one, we breathe in air through our dash dash. हम सांस किससे लेते हैं? Through our nose. So we will write here nose. All living things increase in their size. This answer is size. Underline it. Now see question number C, give one word for. मतलब एक ही वर्ड में उसका आंसर देना है. इंक्रीज इन साइज ऑफ लिविंग थिंग्स. जब लिविंग थिंग्स के साइज में ग्रोथ होती है, इंक्रीज होती है, मतलब वो बढ़ते हैं, तब हम उसको बोलते हैं डैश डैश. स्पेलिंग जो है वो जी से स्टार्ट होता है, तो उसका आंसर है GROWTH, ग्रोथ. ओके. नाउ सी प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर. जिससे हम सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग. सो वी विल राइट हियर ब्रीदिंग. थर्ड वन, गिविंग राइज टू यंग वंस. जिससे हम मतलब हमारे छोटे बच्चे तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. सो वी विल राइट हियर रिप्रोडक्शन. स्मॉल होल्स ऑन द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट. जो इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर जो स्मॉल होल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स. सो वी विल राइट हियर स्पाइरेकल्स. ओके. प्लैनेट ऑन विच वी लिव. ऐसा प्लैनेट जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, हम रहते हैं. अभी प्रेजेंट पे हम उस प्लैनेट पे रह रहे हैं. कौन सा प्लैनेट है? तो उसका नाम है अर्थ. वी आर लिविंग ऑन अर्थ. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन सी. ओके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ स्टूडेंट्स सी क्वेश्चन नंबर डी, क्लासिफाई लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. The pictures are given in your textbook on page number 16. Okay, here on page number 16 pictures are given and you have to write below them. उसके नीचे तुमको लिखना है कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. तो पहला पिक्चर है टाइगर का. टाइगर क्या है? लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग. चॉकलेट, चॉकलेट ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग. देन लैम्प, लैम्प की लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? तो नॉन लिविंग थिंग. चेयर obviously non living thing. Okay, now see question number E, match the pairs. One side the names are given and other side the pictures are given. So since I cannot draw pictures over here, so I have written the names. Okay, so you have to match them correctly. First is man made thing. Man made thing कौन सी है इसमें से? तो क्या है? house. Correct answer is house. Now see, correct answer is house. Then second one is natural thing. Natural thing में क्या आता है? जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना है और उसको मैच करना है. तो नेचुरल थिंग है सन.
देन थर्ड वन इज नॉन ईडिएबल प्लांट, जिसको हम खा नहीं सकते, वो कौन सा प्लांट है, तो मशरूम जो है उसको तुमको मैच करना है। देन फोर्थ वन ब्रीदिंग ऑर्गन, ब्रीदिंग ऑर्गन मतलब जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं, तो हम उसको, उसका आंसर है लंग्स। फिफ्थ वन हैविंग स्पाइरेकल्स, हैविंग स्पिरेकल्स जो है वो इंसेक्ट में होते हैं, तो तुमको जो भी इंसेक्ट वहाँ पर दिया है, किसका पिक्चर दिया है, कॉकरोच का, तो तुमको उसके साथ में मैच करना है। सो नाउ ओनली वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर F, ट्रू और फॉल्स, दैट वी आल्सो गोइंग टू डू राइट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर F, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दिस आंसर इज ट्रू, यू हैव टू राइट हियर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, रॉक्स क्लाउड्स माउंटेन्स आर मैन मेड, रॉक्स क्लाउड्स माउंटेन्स जो है वो मैन मेड है क्या, नो, सो यू हैव टू राइट हियर फॉल्स। ऑल लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन फूड, दिस आंसर इज करेक्ट, right or wrong, so this answer is also false, I will write here false। क्यों, क्योंकि कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो लिविंग थिंग होने के बाद में भी अपना खाना खुद बना नहीं सकते, सो नॉट ऑल लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन फूड, दैट इज फॉल्स। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनली थ्रू सीड्स, बहुत से जो प्लांट्स हैं वो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ट्रू। एंड लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट ओपन व्हेन इट इज टच्ड, टच मी नॉट का प्लांट जो है टच होने के बाद में उसको जब हम टच करते हैं तो वो अपनी लीव्स को क्लोज करता है कि ओपन करता है, तो क्लोज करता है, सो लीव्स ऑफ टच मी नॉट ओपन व्हेन इट इज टच, दिस आंसर इज फॉल्स। So up to now we have completed question number F, all the question answers we have done along with worksheet number 2 and also have solved exercise given below the lesson, and remaining question answers I will send you or share you with classroom app. Okay, I will share all the answers given below the lesson on classroom app. So I would like to stop here, but students one more thing, as we have said in our parents meeting, जैसे हमने आपको बताया पेरेंट्स मीटिंग में कि हम 15 दिन के बाद में तुम्हारी नोटबुक चेक करने वाले हैं। ओके, तो जो भी तुमको वर्क या होम असाइनमेंट जो दी गई है वो तुमको किस में लिखनी है, नोटबुक में लिखनी है। ओके, नाउ यू हैव मेनी ऑफ यू हैव परचेज द ओल्ड टेक्स्ट बुक, तुम में से बहुत से लोगों ने पुरानी किताबें खरीदी होगी जिसके अंदर ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं, तो तुमको क्या करना है, रब करके खुद की ओन हैंडराइटिंग में उनको लिखना है। और जैसे कि हमने बताया, आफ्टर ईच एंड एवरी लेसन वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ जूम मीटिंग, हम क्या करने वाले हैं, एक जूम मीटिंग लेने वाले हैं बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, कि उनको वो लेसन समझ में आया है या नहीं, उनको वो लेसन एक्सप्लेन हुआ है या नहीं, अच्छी तरह से समझ में आया है या नहीं, या तो फिर उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। ओके, सो आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, बट टिल देन you have to complete your work, enjoy your studies and keep smiling. Don't forget to take care of yourself. Bye bye.